The studios after that break, and we go live now to Power Minister Piyush Goyal's conference in Delhi. And our people, and also the road ahead. We are privileged and honored to have amidst us the Honorable Minister for Power, Coal and New and Renewable Energy, Shri Piyush Goyal ji, who will share with you his part of the development story. I extend a warm welcome to you, sir. I also welcome Secretary Power, Shri Pradeep Kumar Sinha, Secretary Coal, Shri Anil Swarup, Secretary New and Renewable Energy, Shri Upendra Tripathi, Special Secretary Power, Shri Devendra Chaudhary. Today's format of the press conference will be, first, the Honorable Minister will release the e-book and the pocketbook of the three ministries. He will also launch the united website of the respective ministries. Thereafter, the Minister will make his opening remarks. We will then take a few questions from you all. I request all of you to ask your questions one by one. And before asking the questions, please state your organization. Also, may I please request you restrict your question one per organization so that the maximum number of media persons get an opportunity. I would also like to say the points of order which you might have read. Please raise the placards which are kept in front of you before asking the question. Kindly switch off your mobiles or keep them on silent mode. Now I call upon the Minister for the launch of e-book. Now the Minister will launch the website of the ministries. I think it is more their effort and their website. So it's more appropriate our secretaries do this. Yes, it is all your effort that has got us. I'm here. Malhotra को बुला लो कहीं है Malhotra now we are distributing the booklets.
So, yeah. So now I request the minister to make his opening remarks. Thank you very much, Mr. Narona. At the outset, thank you very much for being with us this morning. It was around this time, on 27th of May, 2014, when I had gone to seek the blessings of Shri Atal Bihari Vajpayee at his home, that I was told that the portfolios have been allocated. And we actually requested the office there to take a printout and see what was the portfolio given to me. That's the time I realized the challenge that lay before the country and before me in the sectors of power, coal, new and renewable energy. But I think it was very appropriate that I was taking the blessings of Mr. Vajpayee, who has in some sort of ways mentored me and blessed me over the years. And with the confidence that the Prime Minister Shri Narendra Modi had reposed in me, that I took charge on the 27th in the areas that were of responsibility that were given to me. और आज मुझे बड़ी खुशी है कि एक साल के पूर्व जब मैं अपने कार्यक्रम का लेखा जोखा आपके सामने रख रहा हूँ, एक कार्यव्रत आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो बहुत बड़ी मात्रा में समाधान है कि एक वर्ष में इतनी प्रगति हुई अन्य अन्य क्षेत्रों में, और एक नया उत्साह और कॉन्फिडेंस आया है, आत्मविश्वास बढ़ा है कि आगे आने वाले 4 वर्षों में प्रधानमंत्री का जो एक संकल्प था कि हम देश में 24 घंटे 7 दिन हर घर को बिजली दे सकें, हर किसान को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले, औद्योगिकरण तेजी से बढ़े और उद्योग को, कारखानों को, दुकानदारों को, छोटे व्यापारियों को, लघु उद्योग को, सभी को डीजल जनरेटर से मुक्त करने का जो कार्यक्रम सरकार ने 5 वर्षीय लिया था, उसके पहले वर्ष के आखिरी में हमारा संकल्प और दृढ़ हुआ है और हमारा आत्मविश्वास और बढ़ा है। कई बार आंकड़ों में कुछ कहानियां छुपी होती हैं, तो अगर आंकड़े देखें तो इन तीनों विभागों के कार्यक्रम, तीनों विभागों की उपलब्धियों के बारे में अच्छी जानकारी आप सबको मिल सकती है। काफ़ी आंकड़े कई बार डिस्कस हो चुके हैं, फिर भी ब्रीफली जो 5-6 प्रमुख मुद्दे जो इस पूरे साल को एनकैप्सुलेट करते हैं, द 4 or 5 issues which clearly demonstrate the success story of the power, coal and new and renewable energy ministries, I would like to present before you. एक जो सबसे बड़ी चैलेंज इस देश की रही है, वो रही है कि पारदर्शिता हो, सरकार के काम में ईमानदारी हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, और उसका अगर मापदंड निकालें इस मंत्रालय का, तो तीनों मंत्रालय में एक प्रकार से डीब्यूरोक्रेटाइजेशन, सरकारी कामकाज सरल हो, उसके कई काम शुरू किए गए। मैंने कई बार जिक्र किया है कि मंत्री बनते वक्त कहाँ 100 फाइलें रोज आती थी, आज मैं विदेश से 1 हफ्ते बाद आया तो 20-22 फाइलें भी पेंडिंग नहीं थी। साधारणतः कभी 4 कभी 5 फाइलें रोज आती हैं अप्रूवल के लिए। इस प्रकार से हमने सशक्तिकरण किया अधिकारियों का, उनका उत्साह बढ़ा, उन पे विश्वास किया और उनके काम से मुझे बड़ी संतुष्टि है। और सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा सहयोग किया और इतनी मेहनत लगन से
देश के ऊर्जा क्षेत्र को गति दी। मीडिया के मित्रों का भी विशेष धन्यवाद इसलिए दूंगा कि आपका जो दायित्व है आपने बहुत सुचारू रूप से निभाया है। You have been guiding us, you have been criticizing us, you have been pointing out new ideas to us, and each one of your suggestions, each one of your ideas, and even each one of your criticisms has helped us perform even better, look at our workings in greater detail, introspect in our working, and I'd like to place on record my sincere appreciation of that. But all of this effort of the department and the various PSUs and your guidance has helped us bring down the power deficit to a record 3.6% in the last year, which is the lowest ever in the history of independent India. Of course, this has been possible because the coal production went up significantly. We had a growth in coal production of 8.3% in the year gone by. And mind you, ladies and gentlemen, this is only after we got 10 months to perform last year. In fact, I was just reading, I get my morning message about the coal output. And at 11:30 today, I got the message. The production report of Coal India of 26th of May shows that the production growth in the first 56 days of this year is 11.7%. Coal production by Coal India, a company which many people believed could never go beyond 1.5%, 2%, in the first 56 days of this year has grown by 11.7%. And that's the consistent performance across the sector. Obviously, all this coal, all this power has to be transmitted, and we've been able to add 22,100 circuit kilometers of transmission lines in the last 1 year, which by itself is a record never seen in the history of India. Also, we have exceeded the target, which I am sure you are all aware for many years used to be a rarity. Simultaneously, the substation capacity has increased by 65,554 MVA. Along with all this, during the last 1 year, the power generation growth has been 8.4%, one of the highest in several years, certainly the highest in 2 or 3 decades. What we also must recognize is that generation capacity is something which will prepare us and the energy security of this country in the long run. And you are all aware there were many stalled projects over several years, whether in gas, whether in coal. One serious effort has been done to resolve the stalled projects problem. And I am happy to inform you that the highest ever generation capacity increase in the history of independent India was achieved last year. 22,566 megawatt of generation capacity was added last year. All of these things and achievements will reflect on you how we have made a very good beginning. ये शुरुआत कितनी अच्छी हुई है और इस शुरुआत से आगे के आने वाले काम का आपको एक झलक मिलती है। इस शुरुआत से इन सब उपलब्धियों से आपको ध्यान में आता है किस प्रकार से सिस्टमैटिकली वी आर वर्किंग टुवर्ड्स पावर फॉर ऑल बाय 2019, 24/7 अफोर्डेबल क्वालिटी पावर। साथ ही साथ कोयले के आवंटन के विषय में आप सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप थे, इलीगल और आर्बिट्रेरी मैनर में कई कोयले की खदानों का आवंटन हुआ था। उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, 24 सितंबर 2014 को निर्देश आया, तब कई मित्रों ने आर्टिकल्स लिख के देश में हाहाकार सा मच गया कि आगे आने वाले दिनों में बिजली की और कोयले की कमी के कारण
स्थिति बहुत बिगड़ सकती है, स्थिति में गंभीर कठिनाइयां आ सकती हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि सभी ने मिलके जो प्रयत्न किए, जिस प्रकार से पूरा टीम इंडिया इसमें लगा, केंद्र सरकार के अधिकारी, केंद्र सरकार में कोयला विभाग, पर साथ ही साथ सभी मिनिस्ट्री उस काम में जुट गए। फिर वो चाहे हमें वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय का जो सहयोग मिला, जो स्टील मिनिस्ट्री का सहयोग मिला, कानून मिनिस्ट्री का सहयोग मिला, लॉ एंड जस्टिस का, और जो प्रधानमंत्री ने हमें उत्साह और हमारा मनोबल बढ़ाया कि ये काम समय सीमा से किया जा सकता है, ईमानदारी से किया जा सकता है, और एक तरीके से आगे आने वाले भारत के भविष्य में फॉर पोस्टेरिटी वी वर एबल टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क विच विल इंश्योर दैट आज के बाद भारत के नेचुरल रिसोर्सेज, द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया कैन नेवर बी मिसयूज्ड, कैन नेवर बी गिवन आउट in an arbitrary fashion. It will always be incumbent on any government now or in the future to use the natural resources of India judiciously and to give them based on a process with honesty and integrity, and use the resources from there to serve the people of India. कोयले के आवंटन में अभी तक जो खदानों को ऑक्शन किया गया, नीलामी की गई, साथ ही साथ कुछ खदानों को राज्य सरकारों को दी गई, जिससे राज्य सरकारों की डिस्कॉम्स को सस्ती बिजली मिल सके, उनके पावर जनरेटिंग स्टेशंस को सस्ता कोयला मिले। उन सभी का क्यूमुलेटिवली 3,35,000 करोड़ का आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे कोयले का उत्पादन होगा, उस रेवेन्यू को जो पूर्वी भारत के राज्य हैं, अधिकतर झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, कुछ मात्रा में तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों का राजस्व बढ़ेगा और उससे वो जनता की सेवा और अच्छी तरीके से कर सकेंगे। मैंने पहले भी दोहराया है कि हमने ये सभी काम एक कमांडमेंट्स, एक प्रिंसिपल्स के बेसिस पे किया है। हर एक काम मंत्रालय में एक तरीके से कुछ ना कुछ सिस्टम से, प्रोसेस से, प्रोसीजर से किए गए। तो भ्रष्टाचार मिटाना है, साथ ही साथ काम को सरल बनाना है। उसमें हमने ट्रांसपेरेंसी लाए, उसमें हमने रूट कॉज एनालिसिस करके एक एक विषय को आधारभूत सुधार दिया। कैसे प्रायोरिटाइज करना, क्या विषय ज़्यादा जरूरी है, उस पर फोकस किया। आगे आने वाले कार्यक्रम को लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण, विजन दी, और ये प्लान किया कि भारत दिनों दिन तकलीफ़ों से उलझने के बदले आगे आने वाले 5, 10, 20 वर्ष, और अगर हमारी ऊर्जा सुरक्षा को देखें तो 50 वर्ष का भी आज से कल्पना करें। इस प्रकार का कार्यक्रम सरकार ने, एज आई सेड, टीम इंडिया ने, उसमें राज्य सरकारों का भी हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला, अधिकतर रूप से। कुछ सरकारों का सहयोग कम है, मैं समझता हूं या तो वो सहयोग बढ़ाएं या आगे आने वाले दिनों में जनता निर्णय करेगी उनके काम का और उसका सही जवाब देगी। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि देश में कोयला भी पर्याप्त है, बिजली भी पर्याप्त है, और आगे आने वाले दिनों में नवीकरणीय ऊर्जा से हम पूरे विश्व को एक नया एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं। अभी अभी यूनाइटेड नेशंस में सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल की कॉन्फ्रेंस में इस विषय पे बहुत गंभीर चर्चाएं हुई, और मुझे बड़ा आनंद है आप सबसे शेयर करते हुए कि भारत का स्टैंड, और भारत ने जिस प्रकार से इस विषय को आगे बढ़ाया है, और आगे आने वाले 7 वर्षों में हम नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, वेस्ट टू वेल्थ, स्मॉल हाइडल, इन सभी योजनाओं से 1,75,000 मेगावाट
कि बिजली की कैपेसिटी का निर्माण करने जा रहे हैं। उसके लिए बहुत सिस्टमैटिक प्रोग्राम और रोड मैप बना है, और उसका जब मैंने डिटेल्स शेयर की यूनाइटेड नेशंस में, तो मैं आपको बता सकता हूं, मेरी भी छाती गर्व से चौड़ी हुई कि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा का क्षेत्र बने, भारत दुनिया को दिखाए कि भारत एक बड़ा जिम्मेदार देश है, भारत क्लीन एनर्जी, साफ ऊर्जा से, अच्छी ऊर्जा से अपने देश के जनता की सेवा करना चाहता है, भारत पर्यावरण का बहुत ध्यान रखना चाहता है, भारत पर्यावरण की अपनी जिम्मेदारियों को अपने आप स्वयं से रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में लेता है, और बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर के भारत ने एक एम्बिशियस, बोल्ड एंड अचीवेबल टारगेट सेट किया है, जिसको हमारी पूरी सरकार के सभी अधिकारी और राज्य सरकार के सहयोग से हम इसको आगे आने वाले दिनों में पूरा करेंगे। हमने साथ ही साथ 2 या 3 और बड़े लक्ष्य रखे हैं। कोयले की प्रोडक्शन को हम आगे आने वाले दिनों में, जो आज भारत में लगभग 600 मिलियन टन यानी 60 करोड़ टन बनता है, जिसमें से 494 मिलियन टन, लगभग 50 करोड़ टन कोल इंडिया बनाता है, और 10 करोड़ टन बाकी प्लांट्स, बाकी माइन से निकलता है। इस 60 करोड़ को बढ़ा के हम 150 करोड़ तक लेके जाना का कल्पना करते हैं, जिसमें कोल इंडिया अकेले 5 वर्ष में अपनी प्रोडक्शन को डबल करके 100 करोड़ टन कोयला आगे आने वाले दिनों में बनाएगा। उसके लिए कलकत्ता में जब कोल इंडिया का नया हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया 10 दिन पहले, उस दिन हमने एक रोड मैप फॉर एनहांसिंग द पावर टू 100 करोड़ टन्स देश के समक्ष रखा था। इस रोड मैप के तहत 100 करोड़ टन 2020 तक कैसे बनेंगे, उसका बड़ा डिटेल माइन बाय माइन प्लान, क्या क्या आवाम करेंगे, कौन कौन सी नई माइनें खुलेंगी। और मुझे ये आपको सूचित करते हुए खुशी होती है कि आगे आने वाले दिनों में 60 से भी अधिक नई माइनें खुलने जा रही हैं। हमने पिछले कुछ महीनों में 5 नई माइनों की ओपनिंग की है। 2 बड़ी बड़ी माइनें झारखंड में, 3 माइनें महाराष्ट्र में, और इसमें बड़ी डिटेल्ड प्लान टाइमलाइन के साथ हमारी कोल इंडिया और उनकी कोल मंत्रालय की टीम ने बहुत मेहनत से बनाई है। और ट्रांसपेरेंसी इस सरकार की आपके सामने रखूं तो हमने ये भी वेबसाइट पे डाल दिया है। ये प्लान भी आप सभी के लिए मॉनिटर करने के लिए वेबसाइट पे है। तो जैसे हमारे अधिकारी इसको मॉनिटर करेंगे, मैं चाहता हूं आप भी हमारे ऊपर अंकुश रखें, आप भी हमारे को मॉनिटर करें, हमारे काम को, और आगे आने वाले दिनों में हम इस काम को पूरा करके